Good morning, student. Am I audible? Yes, all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है सब नींद में आ Okay. See here, like last time we have started with the consumption function, but we have started with the factors affecting consumption function. ठीक है, तो ऐसे कौन से factors थे कि जो consumption function को affect कर रहे थे? So can you tell me here, हम लोगों ने वो factors को दो group में categorize किया था. किसी को याद आ रहा है क्या वो categorize थे करके? कौन से दो group थे? दो ग्रुप में हम लोगों ने वो सारे फैक्टर्स को कैटेगराइज किया था. कौन से दो फैक्टर्स थे बताओ स्टूडेंट? मैंने आपको बोला था कुछ याद रखने के लिए, एक मूवी का नाम बोला था मैंने. बताओ व्हाट वाज दैट फैक्टर्स? दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया था. यस, अनिश ने लिखा है सब्जेक्टिव फैक्टर. वेरी गुड. इट वाज सब्जेक्टिव एंड अगेन सब्जेक्टिव के साथ क्या था? ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स थे. ठीक है, सो दैट वाज सब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड ऑब्जेक्टिव. यस, वेरी गुड. नूर ने और निकिता ने आंसर दिया है. ओके, तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था. So there are like through the psychological way also, like what is our behavior that will also going to affect your consumption, and even the economical changes will going to affect your consumption. Okay, but when we explain about the meaning of consumption function, at that time I have told you कि consumption function basically दो variables के ऊपर depend रहता है. So what was that? कंजम्पशन फंक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड रहता है. वो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में बात करता है. सो विच आर दिस टू वेरिएबल? याद आ रहा है आप लोगों को? ये कौन से दो वेरिएबल्स है? Income, हाँ. income, हाँ. और इनकम और कंजम्पशन. ठीक है, इट वाज इनकम और इनकम एंड कंजम्पशन. So there was a relationship between income and consumption in consumption function. So how we'll going to explain the meaning? The consumption function shows the relationship between income and the consumption. Then मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड एक इक्वेशन भी दिया था. किसी को याद आ रहा है वो इक्वेशन क्या था करके? कैसे लिखा था उसको इक्वेशन को? कंजम्पशन फंक्शन का दो वेरिएबल्स के बारे में है ना. द कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड द इनकम. तो ये रिलेशन को दिखाने के लिए व्हाट वाज द फॉर्मूला? क्या वहाँ पे इक्वेशन था वो? Yes, very good, Nikita. C is equal to F into bracket Y. Okay. So now we will going to see it in a detail that like last time only I have told you, I will going to explain you with the diagrammatical form so that we will going to see it today. Okay. See, introduction will be same as we have already seen. Keynes' analysis of the consumption function is a major landmark in the history of economic doctrine. Keynes' invention of the consumption function is perhaps the single most important contribution of Keynes to modern economics, as we have seen, because each and every factor, whether it is aggregate demand or whatever things we are doing it, that everything will be depend upon the consumption pattern of the consumer. If they are consuming, then only there will be demand for a commodity. Then only there will be increase in the production. Then only there will be increase in employment opportunity as well as increase in income and increase in GDP. Okay. So therefore, the consumption is the most important factor in the economics. And Keynes ने उसके ऊपर ही study किया. According to the principle of consumption function, employment can increase only with an increase in investment unless there is a change in the propensity to consume. उन्होंने यहाँ पे किस चीज़ को इम्पोर्टेंट दिया है कि इनकम बढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना है, तो उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों का जो इंटेंसिटी टू कंज्यूम है उसके अंदर जो चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते रहते हैं. सो देयरफॉर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनटू द कंजम्पशन फंक्शन. देन हम लोगों ने देखा मीनिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. द कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. केन्स कॉल्ड इट द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मतलब जितना इनकम बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग कितना कंजम्पशन होता है. सो दैट इज योर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट, that is total consumption and the gross national income. So symbolically we can express this relationship as C is equal to F and then into bracket Y. So this way we can explain the relationship. Okay. Okay. Now let's talk about the diagram. अभी हम लोग डायरेक्टली
डायग्राम के पास देखते कि क्या है। so here what you can see डायग्राम में हमें यहाँ पे ये इंडिकेट करना है कि जैसे इनकम बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से कंजम्पशन का पैटर्न कैसे रहेगा। सी द कंजम्पशन कर्व सी सी शोज द केन्शियन कंजम्पशन फंक्शन। ये जो सी सी कर्व है, this CC curve, it basically shows the Keynesian consumption curve। ध्यान में रखो डायग्राम कैसे सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करना है। पहले y एक्सिस पे कंजम्पशन, x एक्सिस पे इनकम बता रहे हैं हम लोग, और ये जो CC कर्व है दिस शोज द कंजम्पशन फंक्शन कर्व। ये तुम्हारा केन्स का जो जिसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो दिस बेसिकली शोज योर केन्स कंजम्पशन function curve। Okay, it indicates the consumption expenditure at various levels of income। देखो जैसे यहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कैसा है ये उसके बारे में इंडिकेट कर रहा है। जैसे अभी इनकम इतना है तो कंजम्पशन यहाँ तक रहेगा, इनकम यहाँ से यहाँ तक है तो कंजम्पशन यहाँ तक रहेगा। सो दिस वे as income is increasing so they are showing the consumption is also increasing, लेकिन कंजम्पशन का थोड़ा सा डिमिनिशिंग स्लोप में है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी सीन फ्रॉम द डायग्राम दैट अप टू द इनकम लेवल y0 कंजम्पशन एक्सीड इनकम, कंजम्पशन एक्सीड इनकम रिजल्टिंग इन नेगेटिव सेविंग और वी कैन से द बोरोविंग। देखो अप टू द इनकम लेवल y0 यहाँ तक y0, अभी इसके अंदर ये जो सी कर्व है दिस इज कंजम्पशन कर्व एंड दिस कर्व 45 डिग्री एंगल का जो कर्व है दिस शोज योर इनकम लाइन। ठीक है, ये आपका इनकम बता रहा है, दैट योर इनकम इज इंक्रीजिंग। ओके, and at this point if any of the curve is intersecting so that there we will going to get the equilibrium in consumption and income, right? so अभी आप लोग ये वाला देखो, ये इनकम है and this is your consumption। so here at zero level of income, यहाँ पे जीरो लेवल है ना, इनकम जीरो लेवल है, फिर भी यहाँ पे कंजम्पशन थोड़ा ऊपर है। कैन यू टेल मी यार व्हाई इट इज सो? ऐसे कैसे हो सकता है, इनकम नहीं है फिर भी कंजम्पशन हो रहा है, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? by by getting loan. हाँ, बाय बाय गेटिंग लोन, किसी से उधारी लेके वगैरह हम लोग कंजम्पशन यहाँ पे करते ही है, बिकॉज दिस इज द नेसेसिटी ऑफ अवर लाइफ। हम लोग को अगर वहाँ पे जिंदा रहना है तो ऑब्वियसली वी नीड टू कंज्यूम सम कमोडिटी। ओके, तो यहाँ पे एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो यू विल गोइंग टू कंज्यूम, इसके लिए वो थोड़ा ऊपर है। उसके बाद में एज योर इनकम इज इंक्रीजिंग, देखो तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है तो तुम्हारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, your consumption is also increasing। okay, so what is that point indicates here, up to income y0, तुम्हारा जब तक इनकम y0 नहीं होता है उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे खर्चा ज्यादा हो रहा है या फिर सेविंग हो रहा है स्टूडेंट, बताओ मुझे। y0 से पहले ये वाले पार्ट में ये पोर्शन में मुझे बताओ, यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा है या फिर इनकम ज्यादा है? कंजम्पशन ज्यादा कंजम्पशन है। में। हाँ, कंजम्पशन अच्छा। ज्यादा है, तो कंजम्पशन। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल सेविंग कर पाएगा? नो मैम। हाँ, नहीं कर। नो मैम। ठीक है, ये हो गया वहां तक का पॉइंट। देन बियॉन्ड दैट इनकम कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। अच्छा, मतलब वहां तक कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। हाँ, ये वाला जैसे कि अभी ये y0 इनकम लेवल है ना, उससे आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ कंजम्पशन का वो नीचे है और इनकम का उसके ऊपर है, तो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा है या फिर इनकम ज्यादा है? इनकम ज्यादा है। इनकम ज्यादा है। यहाँ पे इनकम ज्यादा है, सो व्हाट इज द इंडिकेटिंग ईयर, यहाँ पे इनकम ज्यादा है मतलब यहाँ पे वो सेविंग कर पाएगा। यस, यस यस मैम। मैम। वो वहाँ यस पे मैम। सेविंग कर पाएगा। ठीक है, देन diagram shows that after the point D, as income increases the amount consumed out of a given increase in income will progressively decline। मतलब at the after the point D, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके बाद में क्या होता है कि कंजम्पशन कम हो जाता है लेकिन इनकम अपना इंक्रीज मतलब प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता रहता है। देन correspondingly the amount saved will progressively increase। thus the gap between income and consumption, that is the gap between consumption curve CC and the 45-degree line after the point D will increase not at a constant rate but at an increasing rate। Hence, according to Keynes, marginal propensity to consume will decline as income increases। देखो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या क्या समझा तुम लोग के डायग्राम में,
y पे कंजम्पशन है, x पे इनकम है. 45 डिग्री लाइन इज इंडिकेटिंग योर इक्विलिब्रियम इनकम लाइन. सो ये तुम्हारा इनकम है. So your income is always increasing as this is upward one and 45 degree line. So this is your income line. And then CC is your Keynesian consumption line. Here you can see at zero level of income also your consumption is happening. So that is called as your autonomous consumption. इसको कहा जाता है autonomous consumption कि जो income के ऊपर depend नहीं है, ये आपको totally मतलब this is the necessity, so you are doing it by taking a money as a loan या फिर भी हम किसी से उधारी लेके वगैरह हम लोग यहाँ पे कंजम्पशन करते ही हैं. Then gradually your income will going to start increasing. So as your income is increasing, you can say consumption is also increasing. लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ को नोट करोगे कि देखो ये अप टू दिस लेवल तुम्हारा जो कंजम्पशन लाइन है और इनकम लाइन है एकदम स्ट्रेट है, मतलब वो एकदम बराबर से स्लोप हो रहा है. लेकिन थोड़े टाइम के बाद में इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा डिमिनिशिंग दिख रहा है. सो व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग हियर कि तुम्हारा इनकम भले वहाँ पे 50% से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन तुम्हारा कंजम्पशन भी है वहाँ पे, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग बाय सेम एज अ 50%. तो वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है एज इट इज गेटिंग स्लोली डाउन इन द सेंस कंजम्पशन. फिर से देखो कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है, कंपेयर विद द इनकम लेवल, जो तुम्हारा इनकम लेवल है उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन कम हो रहा है. ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. Then at this D point, your consumption line is intersecting your income line. So here we are getting the income level Y0. So Y0 income level के बाद में situation क्या होता है? Your consumption is declining as compare with your increase in income. ठीक है. So consumption after D point, your consumption will going to decline and consumption ratio we can say consumption rate is declining and your income is more than your consumption. So therefore, it shows that after the D point, the consumer can save the amount, and before the D point, the consumer cannot save the amount here. तो यहाँ पे रहेगा saving, यहाँ पे रहेगा डिससेविंग. ठीक है. तो आपको डायग्राम के थ्रू क्या समझा स्टूडेंट? कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन इनकम और इट विल इंक्रीज विद द डिमिनिशिंग रेट. व्हाट यू ऑल से? क्या बोलोगे? Second one. सेकेंड वन. Second one. यस यस. ठीक है. योर कंजम्पशन विल बी इंक्रीजिंग बट विद द डिमिनिशिंग रेट एज इंक्रीज इन इनकम. ठीक है. तो ये हम लोग ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट योर कंजम्पशन फंक्शन. समझ में आया आपको ये कंजम्पशन फंक्शन क्या है करके? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो. अभी ऐसा सोचो मत कि मैं तुम लोग को बोलने वाले कि चलो अभी बस हो गया करके. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. तो जो कंजम्पशन फंक्शन का जो मेन चैप्टर था इट इज ओवर नाउ. कि कंजम्पशन फंक्शन में हम लोग को यही देखना था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पशन फंक्शन क्या होते हैं. देन अगेन डायग्राम के फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करा था. इसके ऊपर केस स्टडी रहता है. केस स्टडी रहता है मतलब वी कैन से इसके ऊपर तुम लोगों को सम्स आते हैं. अभी इसमें सम्स आएंगे या नहीं, आई थिंक आ जाएंगे शायद से. तो सम्स के लिए हम लोग एक साथ मतलब तुम्हारा जो इकोनॉमिक्स है ना इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में सम्स है. तो वो सम्स का पूरा स्टडी में आपको एक साथ लास्ट लेक्चर में वगैरह ऐसे अपना रहेगा पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद में. दैट टाइम आई विल गोइंग टू शो यू कि कैसे कैसे सम्स आ सकते हैं करके. ओके. तो अभी के लिए हम लोग मैं सम नहीं बताऊंगी आपको, मैं बाद में सम्स बता दूंगी कैसे रहेगा करके इसके ऊपर. लेकिन कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर आते हैं. मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर देते जाओ. See the question here. Which of the following factors मतलब एमसीक्यू टाइप ही है. हाँ, थोड़ा रिवीजन लेते हैं हम लोग. चलो. Which of the following factor consist of those motives which induce individuals to refrain from spending out their income? मतलब उन्होंने कहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है कि जो इंडिविजुअल को मतलब मोटिवेशन आता है, मतलब व्हाट वी कैन से. हाँ, इससे काइंड ऑफ मोटिवेशन का मीनिंग तो आपको समझता है ना. मोटिवेशन मतलब व्हाट वी कैन से साइकोलॉजिकली तुम्हें वैसा इंटेंस करता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए करके. सो दैट वे. ठीक है. सो वो ऐसा मतलब आपको मतलब इनकम खर्चा करने के लिए, आपका जो इनकम है वो खर्चा करने के लिए इनमें से कौन सा कौन सा फैक्टर आपको मोटिवेट करता है. सो ऑप्शन है सब्जेक्टिव, देन इकोनॉमिक, देन ऑब्जेक्टिव एंड सोशल.
क्या लगता है आपको? Which factor will Economic. Subjective. which Subjective. हाँ yes subjective will going to affect more here. ठीक है, देन और एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपको, देखो। हम्म, Hmm. According to consumption function, the consumption function shows the relationship between the following factors. Income. अच्छा, Income. no need of option हाँ चलेगा। In Yes, income and consumption। ठीक है, चलो good। consumption. Yes, okay। Now you just tell me what do you mean by the propensity to consume? Who will tell me? As the income rises, our consumption too rises, but at a certain level. But at a certain level. Okay, propensity to consume, it means we can say the ratio of, okay, it's the ratio of income and consumption. So that shows like जैसे तुम्हारा income बढ़ता है उसके हिसाब से consumption भी बढ़ेगा, but that will be at a certain level, it means it could be at a diminishing rate. So that will be your marginal propensity to consume here. Hmm, मैं next क्या पूछूं? ओके, बट दिस कॉन्सेप्ट आर क्लियर ना, कंजम्पशन फंक्शन क्या है ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Yeah. Yes. ओके, मैं आप लोगों को फिर भी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन शेयर करती हूँ। Okay, so let's start here. Now this is actually your next chapter. Okay, so this is your chapter number 7. Now we have done with the chapter number 6, and this investment function is your chapter number 7. Okay, तो हम लोग ये नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं with the new chapter. So what we're going to study into this chapter, investment function में, we will going to study like how the investment has been happening, then again investment के लिए कौन से factors वहाँ पे responsible रहते हैं, that we will going to see into this chapter here. तो इससे इससे ही रिलेटेड तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मल्टीप्लायर, लेकिन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट लाइक व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, then again what is marginal efficiency of capital, marginal efficiency of capital का कर्व कैसे रहता है, then again determination of equilibrium level of investment by MEC and the rate of interest, and the factors affecting marginal efficiency of capital. So these many points we have to see in this chapter. Okay, so let's start with the investment function. See, meaning of capital and investment. Before proceeding toward what is investment function, we should be clear what is capital and what is investment. In ordinary parlance, investment means to buy shares, stocks, bonds, and security which already exist in the stock market. But this is not the real investment because it is simply a transfer of existing asset. Hence, this is called financial investment, which does not affect aggregate spending. But in Keynesian terminology, investment refers to real investment which adds to capital equipment. It leads to increase in the level of income and the production by increasing the production and the purchase of capital goods. Investment does include new plant and equipment, construction of public work like dams, roads, building, etc. Net foreign investment, inventory and stock and shares of new company. In the word of John Robinson,
By investment is meant an addition to capital such as occurs when a new house is built or new factory is built. Investment means making an addition to the stock of goods in existence. So what do you understand here? इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ऐसी जगह पे पैसा डालो कि जिससे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा करके. So when we are doing it in that way, so we are saying कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू केस that we cannot call as a real investment. That we can, because वो ऑलरेडी स्टॉक्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है. उसमें से हम लोगों ने नया क्या लिया, क्या एडिशनल हम लोगों ने कुछ नया कैपिटल वहां पे ऐड किया, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू केन्स इट विल नॉट कॉल एज अ रियल इन्वेस्टमेंट. उसके हिसाब से रियल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग कुछ नया कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया वहाँ पे चीज हम मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं. when we are doing that, so that will be the perfect, that could be called as a real investment. लेकिन जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से ही हम लोग को हाई रिटर्न्स के लिए हम लोग पैसा डाल रहे हैं, सो दैट वी कैन नॉट से एज अ रियल इन्वेस्टमेंट. जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि हम लोग शेयर्स में पैसा शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं, और उस हमें लगता है कि उसके थ्रू पैसा हमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा. सो दैट वी आर सेइंग एज अ इन्वेस्टमेंट. लेकिन अकॉर्डिंग टू केस दे आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट, सो इट विल नॉट बी द रियल इन्वेस्टमेंट. इट विल बी लाइक सिंपली अ ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग असेट. मतलब पहले वो किसी और का था, अभी आपका हो चुका है करके. सो दैट वे, सो उसके अकॉर्डिंग इट इज ओनली कॉल्ड एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. okay, which does not affect the aggregate spending. आप लोगों ने किसी और से वो लिया हुआ है, सो जो ट्रांसफर रहता है ओनरशिप का, बस वो वहाँ पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन कुछ नया वहाँ पे एडिशन नहीं हुआ है. तो उसके अकॉर्डिंग उसने इसके लिए जस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करके उसको कंसिडर किया है. ठीक है. देखो उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू केस व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू द रियल इन्वेस्टमेंट. और रियल इन्वेस्टमेंट किसको कहा है उसने? रियल इन्वेस्टमेंट विच एड्स टू द कैपिटल इक्विपमेंट. सो दैट कुड बी द रियल इन्वेस्टमेंट ओनली. ओके, चलो अभी आप लोग मुझे एक सिंपल वे में आपके हिसाब से बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला फिर रियल इन्वेस्टमेंट रहेगा. what will be the real investment कि जो एक्चुअल में कुछ नया ऐड करेगा, which will add to the capital equipment. what do you all say? अपने हिसाब से बताओ मुझे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ या फिर आप आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि आपके लिए क्या इन्वेस्टमेंट है. यस, टेल मी स्टूडेंट, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू यू कि जो रियल इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है. हम्म. Ma'am, purchasing new technology, constructing new building. invest हाँ 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 हाँ, चलेगा, वो भी चलेगा, बिकॉज हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी. investing in new technological, हाँ हाँ, वैसे मतलब नया टेक्नोलॉजी लेके आना. वेरी गुड वेरी गुड. सो दैट विल बी द रियल investing the human resource, क्या क्या इन्वेस्टिंग द. human resource. हाँ, इन्वेस्टिंग इन द ह्यूमन रिसोर्स. वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट. एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स पे भी है, मतलब वो भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही रहता है कि जिसके थ्रू वी विल गोइंग टू गेट द क्वालिटी ऑफ पीपल. वेरी वेरी सुपर था ये वाला मतलब ये वाला एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ह्यूमन रिसोर्स में भी इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो, दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज द रियल इन्वेस्टमेंट, कि जिसके थ्रू हमें कुछ ऐड होने वाला है, मतलब कुछ नया हमारे पास आने वाला है, और जो एग्जिस्टिंग ही है उसको ही हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, सो दैट विल नॉट कॉल एज योर रियल इन्वेस्टमेंट. सो यू क्लियर विद द पॉइंट. मतलब केस क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ गए ना, कि उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि कुछ नया एडिशन होना चाहिए, जो है उसमें ही कुछ आप पैसा इंक्रीज मत करते रहो, कुछ नया एडिशन करो. सो दैट कुड बी द रियल इन्वेस्टमेंट. देखो इन्वेस्टमेंट डज इंक्लूड न्यू प्लांट. उनके हिसाब से अभी केस से क्या क्या बताया है. Investment does include new plant and equipment, construction of public work like dams, roads, buildings, etc. The net foreign investment, inventories and stocks and the share of new companies. उन्होंने स्टॉक या शेयर्स बोला है, लेकिन अगर नया कंपनी कुछ ऐड होता है और उनके स्टॉक्स एंड शेयर को उन्होंने कहा है रियल इन्वेस्टमेंट करके. And then according to the John Robinson, by investment is meant an addition to capital such as occurs when a new house is built or a new factory is built. Investment means making an addition to the stock of goods in existence. तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम ही दिया हुआ है यहाँ पे.
Anish, can you tell me what is IPO according to you? What is the full form of IPO here? Hmm? Initial public offering. Initial public offering. Initial public Yes, ma'am. offering में what example you can give me? क्या public offering में Uh, example दोगे? when entities first time offer their share to the general public in the primary market. When what has been offered? When entities offer shares to the general public for the first time by primary market. लेकिन मुझे वो नहीं समझा कि क्या ऑफर का बोल रहा है। मुझे बस फर्स्ट टाइम ऑफर किया वैसे समझ में आया, लेकिन एग्जैक्टली क्या ऑफरिंग कर रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं समझा मुझे। Shares of their companies. हाँ, शेयर्स ऑफ योर कंपनी, लेकिन वो शेयर्स भी कैसे होने चाहिए? नए नए शेयर्स होने चाहिए। देयर शुड बी न्यू शेयर्स ऑफ न्यू कंपनीज, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज अ रियल इन्वेस्टमेंट। उन्होंने क्या कहा है कि शेयर्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो शेयर्स पहले से हमारे हैं, और हम लोग को किसी को ऑफर करें तो वहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है, कुछ नया नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है? तो उसको हम लोग नहीं करें, लेकिन हाँ, एज यू सेड कि इनिशियल इनिशियल मतलब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि नया कंपनी है और नया कंपनी ने कुछ शेयर्स अपना क्रिएट किया है और वो उनको ऑफर किया जा रहा है, देन यस वी कैन से इट एज अ रियल इन्वेस्टमेंट। तो तभी हम लोग रियल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, बिकॉज अभी मार्केट में और एडिशनल शेयर्स आ चुका, मतलब कुछ नया चीज ऐड हो चुका है। सो दैट कुड बी द रियल इन्वेस्टमेंट। ओके, सो नेक्स्ट ईयर कैपिटल। अभी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में देखा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नाउ वी विल गो टू सी द कैपिटल। कैपिटल ऑन द अदर हैंड refers to real estate like factories, plants, equipment, and inventories of finished and the semi-finished goods. It is any previously produced input that can be used in the production process to produce other goods. The amount of capital available in an economy is the stock of capital. So, thus, capital is a stock concept. To be more precise, investment is the production or acquisition of real capital asset during any period of a time. देखिए, टू इलिस्ट्रेट एक एग्जांपल के फॉर्म में उन्होंने दिया है। सपोज द कैपिटल असेट ऑफ अ फर्म ऑन 31st March 2004 are rupees 100 crores and it invests at the rate of rupees 10 crores during the year 2004-5. At the end of the next year, 31st March 2005, its total capital will be rupees 110 crores. Symbolically, let I be the investment and the K be the capital in the year and the year t, then the it is equal to kt minus kt minus 1। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि कैपिटल मतलब क्या है कि कुछ एडिशन करता है, कुछ एडिशनली हम लोग अपने स्टॉक में करते हैं। सो कैपिटल इज एक्चुअली योर स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे उन्होंने क्या कहा है कि कैपिटल में उन्होंने कहा है कि रियल एस्टेट लाइक फैक्ट्री से, प्लांट से, इक्विपमेंट से, इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश एंड सेमी फिनिश गुड है। और इन्वेस्टमेंट में कैपिटल कैसे हेल्प करता है कि जब तुम लोग रियल कैपिटल असेट को ऐड करते जाते हो, सो उसके थ्रू वहाँ पे इनकम बढ़ता रहता है। सो दैट वी कैन से एज अ इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन और द एक्विजिशन ऑफ रियल कैपिटल असेट। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल के फॉर्म में दिया है कि एक कंपनी का जो कैपिटल असेट था टिल द 31st March 2004 वो 100 करोड़ था। देन उन्होंने कुछ नया टेक्नोलॉजी ऐड किया, कुछ वहाँ पे नए गुड्स सेमी मतलब मतलब रॉ मटेरियल वी कैन से दैट वे, ओके, फिनिश गुड और सेमी फिनिश गुड्स को खरीदने के लिए उन्होंने और वहाँ पे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो फिर नेक्स्ट ईयर में जब तुम लोग 2005 में जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे आपके कैपिटल असेट का, सो इट विल गोइंग टू बिकम 110 करोड़ ओनली। सो दैट वे investment we can say कि like because of the increase in the capital the investment level will going to increase। तो ये उन्होंने उसका फॉर्मूला दिया है। मतलब टी इज वॉट, टी इज बेसिकली द टाइम, वो टाइम पीरियड के बारे में है। एंड आई इज इंडिकेटिंग योर इन्वेस्टमेंट, के टी इज इंडिकेटिंग योर what we can say current year capital, and kt minus 1 is indicating your previous year capital। सो अभी करंट ईयर कैपिटल कितना है आपका? 110 है। प्रीवियस ईयर में कैपिटल कितना था आपका? 100 करोड़ था। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा? सो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा। सो दिस वे वी कैन show the symbolically investment and the capital. Capital and investment are related to each other through net investment.
Gross investment is the total amount spent on new capital asset in a year, but some capital stocks wear out every year and is used up for depreciation and obsolescence. Yes, हमेशा आप लोग को पता है कि कैपिटल भरे हम लोग यूज करते हैं, एडिशन करते हैं, लेकिन उसका कैपिटल डिप्रिशिएट होता ही रहता है. So net investment is the gross investment minus depreciation and obsolescence charges for replacement investment. This is the net addition to the existing capital stock of the economy. If gross investment equals depreciation, net investment is zero and there is no addition to the economy's capital stock. If gross investment is less than depreciation, there is disinvestment in the economy and the capital stock decreases. Thus, for an increase in the real capital stock of the economy, gross investment must exceed depreciation. That is, there should be. दैट इज देयर शुड बी नेट इन्वेस्टमेंट. उन्होंने ये पॉइंट पे क्या कहा है कि कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू द नेट इन्वेस्टमेंट. मतलब नेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है कि हम लोगों ने टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना किया नए कैपिटल असेट के ऊपर, लेकिन जब उसके अंदर से हम लोग डिप्रिसिएशन को निकाल देते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन कॉस्ट को निकाल देते हैं, देन वी आर ओनली एबल टू गेट द नेट इन्वेस्टमेंट. अच्छा ठीक है, मुझे शायदा ने क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे आईटी मतलब क्या. हाँ, शायदा फिर से एक बार मैं आपको समझाती हूँ. हम लोग यहाँ पे कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें. यहाँ पे आई मतलब इन्वेस्टमेंट है और के मतलब कैपिटल है, और ये जो टी है ना, टी ये इट शोज योर टाइम. ठीक है, ये टाइम के बारे में है. तो अभी यहाँ पे टी मतलब करंट ईयर बोलेंगे हम लोग, करंट टाइम या फिर करंट ईयर बोलेंगे, और T-1 मतलब हमारा ये प्रीवियस ईयर रहेगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है शायदा? यहाँ तक क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ती हूँ. यस मैम. हाँ, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, के मतलब कैपिटल, टी मतलब करंट ईयर, T-1 मतलब प्रीवियस ईयर. तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि करंट टाइम का इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द कैपिटल, कि जो हमारे पास कैपिटल हम लोग लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट डिपेंड रहता है. सो करंट इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से निकाला जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट जो अभी करंट कैपिटल है, सो करंट कैपिटल कितना है? 110 करोड़ का है. ठीक है, और T-1 मतलब ये प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर का कैपिटल कितना था? 100 करोड़ का था. कैपिटल असेट का वैल्यू 100 करोड़ का था. तो मैंने यहाँ पे 110 करोड़ करंट ईयर का माइनस 100 करोड़ प्रीवियस ईयर का निकाला, तो मुझे वहाँ पे समझा कि मेरा इन्वेस्टमेंट इन द करंट ईयर इज अराउंड 10 करोड़ से करके मैंने यहाँ पे 10 करोड़ के कैपिटल्स को खरीदा हुआ, या फिर कैपिटल असेट का वैल्यू है जो मैंने नया कैपिटल मेरे कंपनी में लेके आई उसका. So this is what we can find out with the help of capital how much is the investment. Understood now? समझा आप? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ ठीक है. अभी देखो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में. सो हम लोगों ने यहाँ पे कहा देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसको कहा जाता है कि द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन अ न्यू कैपिटल असेट इन अ ईयर लाइक दिस. ओके, तो हम लोग नए कैपिटल पे कितना पैसा हम लोगों ने खर्चा किया है, दैट विल बी शोइंग, दैट कैन बी शोड बाय द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. लेकिन उन्होंने कहा है कि नया जो भी कैपिटल खरीदा हुआ है दैट इज ओके, लेकिन उसके अंदर से भी कभी डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी हम लोग को निकालना चाहिए. तो जब हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन को निकालते हैं, देन वी आर एबल टू गेट द नेट इन्वेस्टमेंट. सो नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इट इज द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी. मतलब एग्जैक्टली कितना एडिशनल कैपिटल स्टॉक हुआ आपके पास, दैट इज योर नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, हम लोग पहले मेरा इतना था और अभी मैंने इतना लिया, लेकिन कैपिटल क्या होता है? डिप्रिशिएट होता रहता है. तो पहले का जो वैल्यू रहेगा उसमें भी थोड़ा कमी आया रहेगा, और अभी तुम लोगों ने करंट ईयर में भी जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया वो भी तुम लोग यूज करते रहोगे, सो उसका भी डिप्रिसिएशन रहता है. सो टू गेट द रियल इन्वेस्टमेंट, टू गेट द टू फाइंड आउट द नेट इन्वेस्टमेंट, हम लोग को क्या करना चाहिए? वहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन कॉस्ट को भी निकालना चाहिए. सो देन ओनली वी विल एबल टू गेट द नेट इन्वेस्टमेंट. तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि नेट इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है. अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू डिप्रिसिएशन, तो अपना नेट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ज़ीरो है. मतलब जो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया और मेरा डिप्रिसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम उसी कॉस्ट का निकला,
तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट उस टाइम के लिए जीरो रहेगा. सो देर विल नॉट बी एनी एडिशन टू द इकोनॉमिक्स कैपिटल स्टॉक. नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज लेस देन डिप्रिशिएशन, मतलब तुम्हारा तुम लोगों का जो टोटल इन्वेस्टमेंट दिख रहा है और जो डिप्रिशिएशन अमाउंट है वो अगर डिप्रिशिएशन अमाउंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, हाँ, मतलब हाँ यस, डिप्रिशिएशन अमाउंट अगर ज़्यादा रहेगा और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम दिखेगा वहाँ पे, so we can say there is a disinvestment in the economy, and we can say there the capital stock has been decreased. लेकिन if there is an increase in the real capital stock of the economy, then gross investment must exceed depreciation. आपका जो डिप्रिसिएशन का खर्चा है उससे ज़्यादा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए, मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा, देन वी कैन से देयर शुड बी द नेट इन्वेस्टमेंट, तभी वहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है करके हम लोग बोलेंगे. तो मतलब रियल इन्वेस्टमेंट बोलो हम लोग, ऐसे नहीं कि मैंने कुछ नया खरीदा तो मतलब मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिशन हो गया, वैसे नहीं रहता है. वी हैव टू सी द depreciation cost also, then only, and as per the depreciation cost you will come to know whether you are really achieving the net investment, whether you are actually on the position of disinvestment, और तुम लोग या फिर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे हो, वो पूरा आपको आइडिया आ जाएगा. अभी आप लोग मुझे ये बताओ स्टूडेंट कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला है, बताओ. सॉरी, नेट इन्वेस्टमेंट को, नेट इन्वेस्टमेंट को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, किसमें से मुझे क्या डिडक्ट करना पड़ेगा. नेट मैम इन्वेस्टमेंट, हाँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा. अगर मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन दोनों इक्वल कॉस्ट ही दिखाएंगे तो वहाँ पे मेरा नेट इन्वेस्टमेंट का क्या लेवल रहेगा. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का भी जीरो मैम. हाँ, इट विल बी जीरो. अगर मेरा वहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन से भी कम दिख रहा है तो वहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन से भी कम है, डिसइन्वेस्टमेंट रहेगा मैम. हाँ, वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट रहेगा. अगर वहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन से ज़्यादा दिख रहा है सो व्हाट विल बी देयर. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन से ज़्यादा दिख रहा है तो वहाँ पे सिचुएशन क्या है, देयर विल बी नेट. नेट इन्वेस्टमेंट. हाँ, तभी वहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट